Okay, everyone, we are live on Facebook also. It's a heart, everybody gets a soul, everybody gets a mind to let them know that we can be smart, and we can be kind, and we can be living by giving and loving all the time. So on the days when it's feeling tough, and it seems like you don't have enough, well, let's be thankful for our friends and family, and grateful for the air that we breathe, and appreciate everything that we have today. Let's be generous to anyone who has less than us. It's good to be compassionate, 'cause ever since the day you were born, yeah, we've got a lot to be thankful for. Yeah, we've got a lot to be thankful for. Everybody gets the land, and everybody gets a seed. So everybody lend a hand to those in need. 'Cause we can be nice, we can all share, and we can keep growing together. It's better when everyone cares. So on the days when it's feeling tough, and it seems like you don't have enough, well, let's be thankful for our friends and family, and grateful for the air that we breathe, and appreciate everything that we have today. Let's be generous to anyone who has less than us. It's good to be compassionate, 'cause ever since the day you were born, yeah, you got a lot to be thankful for. Yeah, we've got a lot to be thankful for. So, what are you thankful for? I'm thankful for my family. I am thankful for my neighbor. I'm thankful for my dog. I'm thankful for the food I have to eat. I'm thankful for my heart. I am thankful for my grandma and grandpa. I'm thankful for my teacher. I am thankful for my house. We're thankful for the earth. So on the days when it's feeling tough, and it seems like you don't have enough, well, let's be thankful for our friends and family, and grateful for the air that we breathe, and appreciate everything that we have today. Let's be generous to anyone who has less than us. It's good to be compassionate, 'cause ever since the day you were born, yeah, you got a lot to be thankful for. Thankful. Yeah, you got a lot to be thankful for. Grateful. We've got a lot to be thankful for. Appreciate. Yeah, we've got a lot to be thankful for. Alright, we've got a lot to be thankful for. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते सभी को, प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सभी चैट बॉक्स में एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करेंगे क्विकली एवरीवन। आई नो कुछ एरियाज में बहुत सर्दी हो रही है और नॉर्थ इंडिया में, और कुछ में नहीं हो रही है। तो कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, आपको सभी को प्यार भरा नमस्ते नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल इन डे 6 ऑफ आर इनर ट्रांसफॉर्मेशन क्लास, जिसमें हम सब अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, हमारी लाइफ में प्रॉस्पैरिटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पे यूनिवर्स का, सृष्टि के तरीके से कैसे हमें जीना चाहिए, हम उसको सीख रहे हैं और अपनी लाइफ में उन सबको अप्लाई कर रहे हैं। तो हाउ आर यू? आज सबका दिन कैसा रहा? चैट बॉक्स में बताएंगे एवरीवन। आज का सभी का दिन कैसा, किसने महसूस किया वो बताएंगे। राधे राधे शशि जी।
बढ़िया। ओके, ऑसम, मस्त, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट एवरीवन, वंडरफुल, मस्त मस्त, बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पे हम 83 लोग हैं और रिप्लाई आ रहे हैं मुझे कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स के। ग्रेट, वाओ, एक्सीलेंट। और झूठ नहीं बताएगा कोई, सभी को सच्ची सच्ची बताना है उनका दिन कैसा रहा। ठीक है, बहुत अच्छा, मस्त, वेरी गुड, ऑसम। कल 2-3 लोग थे जिन्होंने कहा था उनका दिन अच्छा नहीं था, आज उनका दिन कैसा गया वो बताएंगे। कल से ज्यादा अच्छा, राजेश्वर जी, वेरी गुड, आनंद भरा, एक्सीलेंट, ग्रेट, ऑसम। आज थोड़ा हर दिन से थोड़ा नॉर्मल था, ओके, बहुत अच्छा, जॉयफुल, एक्सीलेंट। और भी सभी 15-20-25 रिप्लाई हैं, एवरीवन एक्टिवली, मस्त ले भारी, वेरी गुड। आई थिंक आप महाराष्ट्र से हैं, सदाशिव जी, मुझे ज्यादा नहीं पता है बट फिर भी। ओके, फुल लाइट, ओके, एक्सीलेंट। सो सभी क्लैप फॉर योर सेल्फ कि आपका दिन कैसा भी था फिर भी आप बिल्कुल टाइम से क्लास में आए हो, 6 दिन से रेगुलर स्टूडेंट्स हो। 1 से 1.25 घंटा हम यहाँ पे बातें करते हैं, तो इट इज जस्ट अमेजिंग। सभी अपने आप को टैप करेंगे कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बोलेंगे आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ कि मैं आज इस क्लास में आई हूँ अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। सो एज यूजुअल हमारी क्लास का रिचुअल क्या है, कल हमने क्या क्लास में पढ़ा था, क्या होमवर्क था, वो किसने कंप्लीट किया नहीं किया, किसी को कोई दिक्कत आई कि नहीं, तो हैंड रेस करेंगे और फिर मैं अनम्यूट बटन दूंगी, नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कुछ नए स्टूडेंट्स के हाथ रेस में देखना चाहती हूँ। वो क्लास में होता है ना, कुछ बच्चे पीछे पीछे रहते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वेरी गुड, पद्मजा जी। एनीवन कल के क्लास में हैंड रेस? ओके, दयावंती जी, मैं आपको बटन दे रही हूँ। ये आज कल कल का बहुत अच्छा दिन था आज का। हाँ कल जी, तो से कल कल क्या से सीखा आज आपने? आज का दिन बहुत अच्छा था। वेरी गुड दयावंती जी। तो कल हम्म। आपने क्या सीखा था क्लास में? वो आपने 10 लिखनी थी ना, वो मैंने लिखी है। अच्छा, लिखी है आपने, वेरी हाँ गुड, जी, हाँ एक्सीलेंट। जी। तो आप दो पढ़ के सुनाइए उसमें से। एक तो लिखा है कि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी, और वेरी एक है गुड, कि आज धूप निकली है खूब बढ़िया, सूरज है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ उसका। वेरी गुड, हाँ एक्सीलेंट, जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। ओके, गोपाल जी, मैं आपको बटन दे रही हूँ। मैंने लिखा है, आत्मवंदन मैम, मैंने लिखा नमस्ते। है, कृतज्ञता मेरी जीवन शैली है। वो 50 बार लिखा मैंने। ओहो, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कृतज्ञता मेरी जीवन शैली है, ग्रैटिट्यूड इज माय लाइफस्टाइल। मैं सुबह शाम दिन रात ग्रैटिट्यूड करता हूँ। एक्सीलेंट गोपाल जी, थैंक यू सो मच। शोभा जी, आपको बटन दे रही हूँ मैं। थैंक यू दीदी। थैंक यू शोभा जी। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। मैं आज ही नहीं आई हूँ आपकी क्लास में, तो ओके, मैं क्लास सभी का भी कोई, शोभा जी का वेलकम करेंगे, न्यू स्टूडेंट हमारी क्लास में। वेरी गुड, बताइए शोभा जी। मैं आपका क्लास का कोई रूल नहीं जानती हूँ। ओके, मैं, हाँ, इसलिए मैं आज सब चीज समझना चाहती हूँ, तो कल से मैं भी फॉलो करूंगी। ठीक है शोभा जी, आप और अटेंड कीजिए। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं कि हमने कल क्लास में क्या किया था, तो उससे आपको थोड़ा सा जो है समझ में आने लगेगा। ठीक है। मैं, ऐसे तो मैं ये बुक पढ़ी हूँ, मैजिक बुक का क्लास की हूँ हाँ जी, मृदुल मैम से। हाँ पर जी, उतना मेरा ये हुआ नहीं जितना म्यूजिक बुक में होता, उससे कोई फायदा मुझे दिखाई उतना नहीं दिया, प्रैक्टिस नहीं हुई मेरी। हाँ और जी, मैं बिहार से हूँ। जी, मैं लखीसराय डिस्ट्रिक्ट सुरगढ़ा गांव से। और मैं बहुत सी क्लासेस की हूँ, पर सबका प्रैक्टिस नहीं होने से बेसी फायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं शोभा जी, आज आपने फिर से कोशिश करने के लिए एक और कदम बढ़ाया है, तो आई एम श्योर आपको पक्का से जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका फल अवश्य मिलेगा। ठीक है चलिए, जी, ठीक धन्यवाद। है।
ओके, कीर्ति सुरानी जी, मैं आपको बटन दे रही हूँ। जब हम अपनी नियामत गिनने लगते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, और मैंने एहसास भी किया है, बदलता है हमारा जीवन। ओके, एक्सीलेंट। थैंक यू। थैंक यू कीर्ति जी। ओके दीप्ति जी, बटन दिया है मैंने आपको। यस मैडम, आज मॉर्निंग में जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी पार्क में, तो वहां पे ना 4-5 डॉग्स थे। तो एकदम से मेरे मन में नेगेटिव एटीट्यूड आया कि क्या ये कुत्ते इतने क्यों होते हैं पार्क में। वैसे तो लिखा होता है कि यू शुड कीप द पार्क क्लीन, और आपको हम्म। मेंटेन करके रखना चाहिए। बट मेरे को ना तभी आपका मेरे को याद आया कि ये भी तो भगवान के ही भेजे हुए हैं। हम्म। तो एकदम से मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया। ओके, एक्सीलेंट। इसको बोलते हैं कि आपने क्लास में जो सीखा आपने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया। अगर आप यहाँ पे सीख के उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। अब हम राजेश्वर मिश्रा जी, आपको बटन दे रही हूँ मैं। थैंक यू गीतिका जी। नमस्ते। मैं नागपुर से हूँ, राजेश्वर मिश्रा। मैंने पिछले महीने ही एक राजेंद्र सर के एक साथी हमारे विजय भाई, उनकी क्लास किया था। जी। कल अचानक मेरे पास मैसेज जो आया, तो आज कल ही मैंने आपकी ज्वाइन किया क्लास। वाकई जी। में आपने इतने कम उम्र में इतना अच्छा नॉलेज प्राप्त करके हम लोगों को जो बांट रही है, काबिले तारीफ है। बिल्कुल आपके जी। समझाने का तरीका वाकई में बहुत ही शानदार। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू राजेश्वर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कल क्लास में आपने क्या सीखा वो तो बताइए। अरे मैं तो 1 महीने से सीख रहा हूँ। कोई नहीं, कल क्या सीखा था वो बताइए। कल यही सीखा कि अपने आप को कभी कोई कमी मत समझो। आप कितने भी करोड़पति हो, अरबपति हो, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहो। जी। सबका तो आभार मानो। आपका जी। अच्छा ही होगा। जो मांगोगे यूनिवर्स से उतना ही अच्छा मिलेगा। आप जी। 1 करोड़ मांगोगे, वो 5 करोड़ देगा। जी, वेरी गुड। वो बोलते हैं ना कि भगवान से जब मांगो तो वो छप्पड़ फाड़ के देता है। और मैंने भी अपनी लाइफ में ये ऑब्जर्व किया। पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि हमें ये सब बातों का पता नहीं होता था। तो मैंने भी ये सोचा कि मैंने अगर इतना सा सोचा है ना तो भगवान ने मुझे हमेशा भर भर के ही दिया है। भर भर के इतने सारे स्टूडेंट्स दे दिए। मैं तो छोटी सी क्लास लेने निकली थी और देखो भर भर के स्टूडेंट्स आ गए हैं मेरे पास। सो आप सबका फिर से बहुत बहुत थैंक यू। अ, ल, ललिता जी, मैं आपको दे रही हूँ, ललिता जी। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी कि शुगर के लिए क्या करूं। अच्छा ललिता जी, अभी हम हेल्थ का टॉपिक करेंगे। आप क्लास में बने रहिए, उसमें हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है। ठीक है मैम, वैसे मैं ग्रेटिट्यूड तो कर रही हूँ आपकी क्लास में, हाँ जी, पर ठीक है। वो अभी हम शुगर हेल्थ थोड़ी थोड़ा अभी ले हम ऊपर है, लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो फिर थोड़ा अच्छा, इसीलिए। कोई बात नहीं। आपको आप हेल्थ में जब टॉपिक आएगा ना तब हम पर्टिकुलर कुछ चीजों पे बात करेंगे तो उससे आपको सहायता मिलेगी कि आप और क्या चीजें करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। जी, थैंक यू। गीतिमा जी, मैं आपको दे रही हूँ। गीतिमा, गीतिका, ए एम और के का अंतर है। हाँ जी, गीतिमा, गीतिमा हेलो जी। मैम, गुड हेलो, इवनिंग। नमस्ते। एक्चुअली नमस्ते। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट डे है जब मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हूँ आपकी क्लास में। ओके। एक्चुअली ममा और मैं साथ में ही लगाते हैं, तो मैं यहाँ से जूम से एक्सेस नहीं करती। तो जी। yesterday आई वॉज अनेबल टू अटेंड योर क्लास, एंड आई वॉज लाइक कि मैं कुछ तो मिस कर रही हूँ। मतलब कुछ पॉजिटिव चीज है जो मैंने यार मिस कर दी, तो मैंने आई डिसाइडेड नहीं यार, रोज लगानी है और अपने जूम से ही लगानी है। थैंक यू। तो गीतिमा जी गीतिका को मिस कर रही थी तो इसलिए वो क्लास में आ गई। आपका हाँ। बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमें ना टाइम नहीं मिलता है। अब आप देखो, आपको ये चूज करना है। फिर से हमारे पास चॉइस है। आपको नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखनी है, आपको अपना टाइम लड़ाई झगड़े वाले मूवीज या सीरियल्स में स्पेंड करना है, या आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छा देखना है। ये चॉइस किसके पास है? हमेशा वी हैव अ चॉइस। आपको अपने आप चूज करना है कि मेरे को अपनी जिंदगी को कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना है और उसके लिए मेरा कौन सा कदम जरूरी है। ये चॉइस हमेशा आपके साथ है। आपका चॉइस आपको लेना है। आप 10 साल के हो, आप 25 साल के हो, आप 60 साल के हो, आप कितने भी साल के हो,
क्योंकि आपको पता है, हम जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, हमारे अंदर क्या चल रहा है ना, ये ना तो भाई बहन एक दूसरे को शेयर करते हैं कंप्लीटली पूरी तरीके से, ना पति पत्नी के साथ, ना बच्चे माँ बाप के साथ, ना माँ बाप बच्चों के साथ। इवन अगर किसी का गुरु शिष्य का रिश्ता भी है, तो बहुत कम ऐसे प्योर रिलेशनशिप होते हैं जिसमें आप 100% अपने मन की बात उभर के कह पाते हो। तो हमेशा अंदर की सच्चाई, आपको पता है कि मैं अंदर से क्या कर रही हूँ, मेरा अंदर से सोच कैसा है, मैं अंदर से किसी के लिए अच्छा सोच रही हूँ या मेरे मन में किसी के लिए घृणा है, इरिटेशन है, और मैं दुखी रहती हूँ, मैं सैड रहती हूँ। अंदर की सच्चाई सिर्फ हम खुद ही अपने अंदर घुस के पहचान सकते हैं। और हम वही प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं कि हमें अपने अंदर कैसे जाना है। ठीक है, तो अभी कुछ और हैंड रेज हैं, 57 हो गए हैं। चलिए हम सुचिता जी को देते हैं। हाँ जी सुचिता जी, आपको बटन दिया है मैंने, आपने हैंड रेज किया हुआ था। नहीं, गलती से हो गया। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उदय जी, मैं आपको बटन दे रही हूँ। गुड इवनिंग मैडम। नमस्ते उदय जी। नमस्ते। मैं कंटिन्यू कल का दिन तो पूरा रात को भी प्रे किया, कंटिन्यू पॉजिटिव था और कंटिन्यू प्रे कर रहा था और सबको धन्यवाद दे रहा था। मतलब ओके। सब पूरा मेरा मम्मी डैडी जो स्कूल को टीचर जॉब को सबको किया, और अबंडेंस में मेरे को बहुत पैसा आ रहा है, और आज मेरा स्टॉक मार्केट में तो बहुत अच्छा हो रहा था। सब ओके, काफी ग्रो हो रहा है। एक्सीलेंट, वेरी गुड अजय जी, वेरी और गुड। और ये हो रहा है मैजिक, मतलब बहुत हो रहा है। मैं इसके पहले कैसा कंटिन्यू मैजिक बुक नहीं किया है। हम्म। एक मेरे एक क्लास ज्वाइन किया था लेकिन अटेंड नहीं कर पाया, तो मैं क्या करता था वो बुक रीड करके खुद लिखता था। हाँ तो जी। मेरा माइंड पॉजिटिव हो गया और अभी मैं ऑनलाइन कंटिन्यू कर रहा है। कल थोड़ा आधा घंटा कुछ नेटवर्क नहीं था, नहीं तो कंटिन्यू, और ये कंटिन्यू करने का है तो बहुत मजा भी आ रहा है और सब हेल्थ भी अच्छा हो रहा है और अबंडेंस आ रहा है सब बाजू से। ओके, क्लैपिंग करेंगे सभी। क्लैपिंग करने से थोड़ी एनर्जी बनी रहेगी। एक्सीलेंट, थैंक यू पूरे। थैंक हम कोई डांस नहीं कर रहे, लेकिन हम क्लैपिंग करके भी अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं। थैंक यू उदय जी, थैंक थैंक यू। यू थैंक यू थैंक ओके, ये राजेश्वर मिश्रा जी से हो गया है और शोभा जी से भी बातचीत हो गई है। ओके, तो हमने कल क्लास में क्या सीखा था? रोंडा बर्न ने हमें जिंदगी जीने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका बताया है कि हमें हमेशा थैंक यू, कृतज्ञता, धन्यवाद के भाव में रहना है। और उन्होंने कल हमें सिखाया कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स को कैसे डेली बेसिस पे काउंट करना है और ढूंढना है। ब्लेसिंग्स मतलब कि भगवान ने हमारी लाइफ में हमें जितना भी कुछ दिया है, क्या हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड, उसके लिए कृतज्ञ हैं? क्या हम उस बात का शुक्राना करते हैं? क्या हम उस बात के लिए एहसानमंद फील करते हैं कि करोड़ों की दुनिया में भगवान ने मुझे चुना और मुझे वो अच्छी फैसिलिटीज दी? क्या हम उसके लिए कृतज्ञ हैं? तो कल हमने वो सीखा था और हमने लाइव क्लास में उसको प्रैक्टिस भी किया था कि हमें अपनी लाइफ में कैसे अपनी ब्लेसिंग्स को ढूंढना है। ठीक है, अब कुछ एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कल आए थे मेरे पास। एक तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, वैसे मैंने उनको आंसर कर दिया था मैसेज में, बट फिर भी मैंने सोचा ये हम सबके लिए, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्लास में शेयर करूंगी। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, 3 दिन पहले आया था ये मेरे पास, ग्रैटिट्यूड वर्सेस ब्लेसिंग्स में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो ब्लेसिंग्स क्या है? ब्लेसिंग्स का मतलब है कि दुआएं, दुआएं देना और दुआएं लेना। तो भगवान ने हमें ब्लेसिंग्स दी है। हमें ब्लेसिंग्स में भगवान ने क्या दिया है? हमें अच्छा परिवार दिया है, हमें रहने को घर दिया है, हमें एजुकेशन दिया है, हमें भगवान ने ये ब्लेसिंग्स दी है। ये ब्लेसिंग्स को हमारी लाइफ में हमें जो मिला है, हम उसका ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। मतलब मैं उसके लिए भगवान को थैंक यू कर रही हूँ, मैं उसके लिए कृतज्ञ फील कर रही हूँ। ठीक है, अगर यही चीज मैंने उनको एग्जाम्पल कुछ और दे के समझाया था, या मैं दूसरा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे यहाँ पे जो है मेड आती है और मैं उसको चिड़चिड़ करना शुरू कर दूं, तू क्या करती है, तेरे में बिल्कुल तमीज नहीं है, एक तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो, ऊपर से तुम्हें काम करना नहीं आता,
पता नहीं पैसे मांगने आ जाते हो। ऐसे ऐसे घरों में होता है, हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये क्या कर रहे हो? आपके वो मेड मिली जो आपके लिए काम कर रही है, ठीक है, आप उसको पैसे भी दे रहे हो, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो? आप उस चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हो। आप एक तरीके से ब्लेसिंग्स का अपोजिट क्या होता है? ब्लेसिंग का अपोजिट, दुआओं का अपोजिट क्या होता है? श्राप देना। तो आप सब इनडायरेक्टली उसको श्राप दे रहे हो कि तू बिल्कुल बेकार काम करती है, तेरा जिंदगी में भला नहीं होगा। तो आपको बदले में क्या मिलेगा? रोंडा बर्न ने हमें क्या सिखाया था? जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। तो अगर आप किसी को ऐसी बातें बोल के, उसको गलत शब्दों का इस्तेमाल करके उसको क्रिटिसाइज करते हो, उसको कर्ज करते हो, जाने अनजाने में हम सब किसी भी को भी गलत बोल देते हैं, तो हमें बदले में यूनिवर्स वैसी ही सिचुएशंस देता है। और हमारे लाइफ में हम जो भी कुछ है वो हमसे ले लिया जाता है। वेरी गुड विभूति जी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हम अपने बच्चों के साथ भी ऐसा करते हैं। हम माँ बाप हैं, और अगर आपके बच्चे हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहिए, लेकिन हम जाने अनजाने में अपने बच्चों को पूरा दिन ब्लेसिंग नहीं दे रहे होते। सभी ऑब्जर्व करेंगे अपने घर में हम क्या बातचीत करते हैं। हाउ यू टॉक विद योर, आप अपने कलीग्स के, बॉस के, अपने पड़ोसियों के बारे में आप क्या बातें कर रहे हो? आप उनको ब्लेस कर रहे हो या उनको श्राप दे रहे हो? ये चेक करेंगे और इसको इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। ये सृष्टि का नियम है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये कोई नई थ्योरी नहीं है जो आप और मैंने बैठ के आज यहाँ पे इन्वेंट करी है। ना मैं कोई साइंटिस्ट हूँ कि मैं रिसर्च करके आई हूँ, लेकिन अगर आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो डेटा यही बोलता है। तो आपको बहुत संभल के ध्यान देना है कि आप रोजाना बेसिस पे ब्लेसिंग्स दे के बात करते हो। ब्लेसिंग्स का मतलब ग्रैटिट्यूड लिखना नहीं है कि यहाँ क्लास में 10 आपने लिख ली, आपको बहुत खुशी हुई, और जैसे ही क्लास से बाहर गए, चलो भैया राशन पानी लेके चढ़ जाओ। ठीक है, तो आपको पूरा दिन अवेयरनेस में रहना है कि आप किस तरीके से बात करते हो अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने इन लॉज से, अपनी नंद से, जितने भी आपके आसपास के रोजाना बेसिस पे रिलेशंस है। हो सकता है वो कोई ऐसी बात कर रहे हो जो आपको नहीं पसंद, दैट्स ओके, लेकिन आप उसको कम्युनिकेट कैसे करते हो वो आपको ध्यान देना है। गलत चीजों को स्वीकार नहीं करना, लेकिन गलत चीजों को कम्युनिकेट कैसे करना है वो आपको डिफरेंस अपने में लेके आना है। ठीक है, उसके अलावा एक और मेरे पास कल के उसके बाद क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे भी मुझे डॉक्टर किसने लिखा अभी कि, एक सेकेंड, हाँ, डॉक्टर सुनीता जी बोल रही हैं कि प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और कल भी मेरे पास एक मैसेज आया था कि आप किस चीज की पर्सनल कोचिंग करती हैं। तो मेरा नाम गीतिका है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं दिल्ली में ही जन्मी हूँ और यहीं पे बड़ी हुई हूँ, और मैं हेल्थ एंड फिटनेस कंसल्टेंट हूँ वैसे। और मैं लाइफ कोचिंग और बिजनेस कोचिंग भी करती हूँ, और उसी की ही मैं पर्सनल कोचिंग भी लेती हूँ। एंड अगर मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और योगा टीचर भी हूँ, योगा प्रैक्टिशनर भी हूँ, मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करती हूँ, मैं ये सब करती हूँ। ठीक है, ओके, चलिए अब हम पहले मेडिटेशन करेंगे, एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट द क्लास फॉर टुडे। और मेडिटेशन में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर प्यारा 80s का सॉन्ग लेके आई हूँ, हीरोइन नूतन का, जिसमें वो भगवान से प्रार्थना कर रही है, और हम भी उसी अंदाज में आज परमात्मा को याद करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा क्लास में पूरी हमें ध्यान पूर्वक करना है। एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। मजा आने वाला है।
Malik, everyone back straight and ready. तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी, कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी, कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का
ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं परमात्मा से कि तू ज्ञान का, तू प्यार का सागर है, और हम तेरे एक उस अनुभूति और उस दर्शन के प्यासे हैं। और वो हमारे कान में आके हमें रास्ता दिखा रहा है, लेकिन अगर हम अवेयरनेस में नहीं होंगे तो हमें सुनाई नहीं देगा कि भगवान तो यही है। तो हमें हमेशा जागरूक अवस्था में रहना है, ताकि जब हमें यूनिवर्स परमात्मा गाइडेंस दे तो हम उस गाइडेंस को सुन सके और उस राह पर चल सके। ओके, चलिए अब हम आज का हमारा क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। और हेयर वी गो। सोनी जी, मैंने आपको राइट्स दे दिए हैं, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दी। यहाँ, ओके, तो यहाँ पे अभी आज क्या होने वाला है, आज दूसरा दिन है। और रोंडा बर्ग ने हमें ये इमेज दिखाई है। उस इमेज में एक लैंप है और नीचे एक उन्होंने स्टोन रखा हुआ है, और उसके ऊपर परमात्मा की एक मैजिक किरणें पड़ रही हैं लैंप के थ्रू। तो ये इस पिक्चर से वो हमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। कंटिन्यू प्लीज। दूसरा दिन। जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस, 1812-1870 लेखक। ओके, तो यहाँ पे एक लेखक हैं चार्ल्स, जिन्होंने कहा है अपनी प्रेजेंट ब्लेसिंग्स पे विचार करें जो हर इंसान के पास भर भर के है, ना कि अपने पास्ट के कुछ ऐसी चीजों पर जो सभी लोगों के पास बहुत थोड़े हैं। तो इसमें वो हमें क्या कह रहे हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं अगर आप अपने जीवन को देखोगे तो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स का पलड़ा भारी है, और जो चीजें आपके पास नहीं है वो कम है। लेकिन हमारा ध्यान का होता है कम वाले पे, हम ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं। तो वहां पे लेखक हमें ये समझा रहे हैं कि आपको अगर 50 चीजें मैंने भर भर के दी हैं और आपके पास दो चीजें नहीं है, तो आप उसके ना होने का दुर्भाग्य मत मनाओ। आपके पास जो ऑलरेडी मैंने 50 चीजें दी हैं उसको सोच के आप अपने आप को भाग्यशाली महसूस करो। कंटिन्यू प्लीज। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ अपने जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। पहुंच लेंगे। तो यहाँ पे रोंडावन ये बोल रही हैं कि आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक कृतज्ञता को आदत बनाने के लिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जो भी लोग आज हमारे साथ यहाँ पे नए हैं और उन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है, और अगर मे भी कुछ मंथ्स हुए हैं और उनको लगता है कि हम सेशन में तो बैठते हैं तो हम ठीक रहते हैं, और उसके बाद तो फिर भगवान मालिक हो जाता है हमारा। तो आप सबको ये बात समझनी है कि मैंने फर्स्ट डे भी समझाया था कि अगर आप 10 साल के हो, 20 के हो, 50 के हो, 70 के हो, तो आपको कितने साल हो गए हैं आपने कभी कृतज्ञता का प्रैक्टिस नहीं किया। तो कम से कम आप अपना थोड़ा सा कुछ समय दो, ताकि वो आपका लाइफस्टाइल और आपकी जीवन शैली अच्छे से बन जाए। और वो हम क्या कहते हैं, हमारे रोम रोम में और हमारे अंग अंग में सिर्फ कृतज्ञता ही झलके, कोई हमें देखे तो बोले अरे ये तो कृतज्ञता जारी है। कंटिन्यू प्लीज। ली ब्रोर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। ओके, यहाँ पे पॉज लेंगे। यहाँ पे वो बता रही है कि रोंडा बर्न की एक मूवी है द सीक्रेट फिल्म, और उसके अंदर उन्होंने एक इंस्टेंस बताया है कृतज्ञता पत्थर का। उन्होंने हमें ये बताया है कि किस तरीके से एक पिता ने अपने बेटे के स्वास्थ्य को उस कृतज्ञता के पत्थर से ठीक कर दिया। और ये चमत्कार होने पर उसको ये समझ में आया कि वो उपचार ने जितना काम नहीं किया जितना कि कृतज्ञता ने उसके साथ किया।
कंटिन्यू प्लीज। सबसे पहले एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें, जिसके कोने नुकीले हों, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। तो यहाँ पे रोंडा वन हमें एक न्यू प्रैक्टिस बता रही है। उन्होंने ये प्रैक्टिस बताई है कि आप कोई भी छोटा सा पत्थर ले लें। जनरली जैसे अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो बीच पे जैसे स्टोन मिलते हैं, या फिर हम कुछ स्टोन्स जो है आजकल क्रिस्टल के स्टोन्स भी आ गए हैं, वो भी ले सकते हैं। तो वो कोई नुकीला ना हो और छोटा सा हो जिसको आप हाथ में मुट्ठी में बंद कर सके। उसके साथ करना क्या है वो भी आगे एक्सप्लेन करेंगी। कंटिन्यू। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोद सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप ओके, पॉज लेंगे। मेरा ये सजेशन है कि अगर पॉसिबल हो तो आप पत्थर वो लें, या तो पार्क से कोई चुन के, मतलब जो कि सृष्टि से जुड़ा हुआ हो। वो मैन्युफैक्चरिंग वाला ना हो कि किसी किसी इंडस्ट्री में मशीन से मैन्युफैक्चर्ड है। वैसे आप वो ले सकते हो, बट प्रेफरेंस होगी कि आप पार्क में या किसी नदी किनारे से, जैसे कि उन्होंने कहा, आप उस तरीके से ढूंढें। कंटिन्यू प्लीज। आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि आप ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। ओके, दिन भर में पॉज लेंगे। यहाँ पे रोंडा वन हमें ये समझा रही है कि उस पत्थर के साथ हमें कैसे यूज करना है। तो आपको वो पत्थर पहले तो ढूंढना है। अगर आपके घर में छोटे प्लांट्स हैं, हो सकता है उसमें हो, या फिर पार्क में आप कल ढूंढ लेना। और आपको उसको क्या करना है, आपको उसको ऐसी जगह रखना है सोते वक्त जहां से कि वो आपके क्लोज रहे। और अगर जरूरी है तो आप सोने की बजाय, मतलब आपको या तो सर सिराने के नीचे, या बिल्कुल अपने कुशन या पिलो अगर आप लेते हैं उसके साइड में, या फिर बिल्कुल कोई साइड टेबल रखा हुआ है आपके बेड के पास, आप उसको वहां पे रख सकते हैं। अलार्म की घड़ी कहीं रखी हुई है तो आप उसके साथ रख सकते हैं, ताकि सोते वक्त और उठते वक्त वो पत्थर आपकी नजरों के सामने हो। शीतल जी, हम क्वेश्चन थोड़ा लेंगे अभी, रुक के। हाँ जी। घर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। ओके, सो रोंडाबन क्या कह रही है, आपको वो पत्थर लेना है अपने हाथ में, उसको बंद करना है, आंखें बंद करनी है। और आपके पूरे दिन में आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सबसे अच्छी बात हुई है जिसके लिए आप सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हो। उस बात को आपको याद करना है और बस पत्थर को साइड में रखना है और आपको सो जाना है। कंटिन्यू प्लीज। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और
हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। ओके, तो यहाँ पे रॉन्डा वन हमें क्या समझा रही है, अगर हम ये प्रैक्टिस को हर रोज एक दिन विदाउट फेल, विदाउट एनी ब्रेक करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम सोने से पहले भी कृतज्ञ होंगे एंड उठने पर भी कृतज्ञता महसूस करेंगे। वो क्या कहते हैं, हम ग्रैटिट्यूड इज माई लाइफ स्टाइल, आई स्लीप इन ग्रैटिट्यूड एंड आई वेक अप इन ग्रैटिट्यूड। कंटिन्यू प्लीज। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ओके, सो रोंडा वन कह रही है अगर आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हो, रात को सोते समय भी आप उस पत्थर के साथ ग्रैटिट्यूड को महसूस करो, एक कोई भी दिन का अच्छी चीज को दिल से याद करो, उसको 1-2 मिनट तक खूब धन्यवाद करो, इतनी खुशी व्यक्त करो कि उस पत्थर में भी जान आ जाए। ठीक है। और वो बोलते हैं ना, अपने पुरानी मूवीज में भी देखा होगा या हम नॉर्मली अपने शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, पंडितों से भी सुनते हैं कि पत्थर में भी भगवान है। तो रोंडा वन हमें वही चीज बस अपने अंदाज में समझा रही है कि किस तरीके से आपको रेगुलर प्रैक्टिस करके यू कैन मेक दैट स्टोन सो पावरफुल कि उसमें भी भगवान की ऊर्जा समा सकती है। तो रात को सोते टाइम और सुबह उठते टाइम सेम पत्थर को आपने ऊर्जा से चार्ज करना है, कृतज्ञता से चार्ज करना है। तो आपकी जिंदगी चुंबक की तरह हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में अपनी मनचाही, अपनी डिजायरेबल और रिक्वायर्ड विशेस को अट्रैक्ट करोगे। कंटिन्यू। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। ओके, वेट करेंगे। यहाँ पे आज का ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, तो रोंडा बर्न ने यहाँ पे क्या बोला है, अभी वो हमें आज का डे 2 का असाइनमेंट दे रही है। ठीक है, उनके जो भी उन्होंने इस प्रैक्टिस को डिजाइन किया है उसके अकॉर्डिंग। तो रोंडा बर्न हमें यहाँ पे अब प्रैक्टिस में क्या कह रही हैं उसको हम समझेंगे। कंटिन्यू प्लीज। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर दिन हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सोनी। सभी हमारे प्यारी रीडर सोनी को ब्लेसिंग्स देंगे चैट बॉक्स में जल्दी से और थैंक यू करेंगे। वो अपना इम्पोर्टेंट काम फिनिश करके 9-10 पे लॉग इन करी है और हमने क्लास तभी जस्ट स्टार्ट ही करी थी। तो एवरीवन ब्लेस हर कि वो अपने शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाल रही हैं और हमारे लिए ये प्रैक्टिस शेयर कर रही हैं। थैंक यू सो मच, हम सबकी तरफ से थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पर अभी रोंडावन हमें क्या कह रही हैं कि आपको जो पहले दिन मैंने प्रैक्टिस कराई थी, मतलब जो कल हमने 10 नियामतें अपनी ढूंढनी थी, उस काम को हमें रोजाना करना है।
रोज आपको 10 ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में से ढूंढनी है। ढूंढना क्या होता है? देखो, वो एक ना ये एक्सपीरियंस है, आपने आपने अपनी लाइफ में आप ऑब्जर्व करोगे कि दुख या सैडनेस या फिर हम हमारा गंदा मतलब भावनाएं, जो हमारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो हमेशा रहती हैं। लेकिन पॉजिटिविटी आपको क्रिएट करनी पड़ती है या ढूंढनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको रोंडामन कह रही हैं कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स को ढूंढना है और उनको लिखना है। दूसरी चीज, ये वाली प्रैक्टिस वो बोल रही हैं, जब तक आप इस क्लास में हो तब तक आपको 100% करनी ही करनी है। और उसके अलावा आज भी उन्होंने एक प्रैक्टिस बताई है जादुई पत्थर की, उसको भी हमने डेली बेसिस पे करना है। तो जिनको पत्थर अभी मिल जाए, अभी तो 9:30 हुए हैं, कोई लेट नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो घर के सामने कोई पार्क है तो आप बच्चों को भेज देना या खुद से ले आना। तो अगर हो सके तो ये आज ही काम कर लो। अगर आप बहुत सुपर एक्साइटेड हो और आपको अपनी लाइफ में आज से ही मैजिक चाहिए। मैजिक किसको बोलते हैं? जो 1 मिनट में हो जाए। तो आप ये मत सोचना कि मैं कल का इंतजार करता हूँ, क्या पता आज रात को ही मैजिक हो जाए, यू नेवर नो। ठीक है? तो पॉसिबल हो तो पत्थर अगर किसी के पास पहले से है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, किसी के पास नहीं है तो आप अपना ले आइए। और अभी हमारे पास 9:28 PM हुए हैं। हम लाइव असाइनमेंट आज ही करेंगे। तो सभी जल्दी से अपने कॉपी पेन ले आओ और चैट बॉक्स में रेडी करो और अपनी 10 ब्लेसिंग्स को ढूंढो और उसको लिखो। ठीक है? उसके बाद फिर हम आज की क्लास को एक नए अंदाज में विराम देंगे। एवरीवन क्विकली गेट योर नोट पेन, बुक, पेन, पेंसिल एंड डू द असाइनमेंट राइट नाउ। मैम, ग्रेटिट्यूड करके मुझे पॉजिटिविटी आ गई। एक्सीलेंट सुचिता जी, वेरी गुड। आप स्टोन ले लीजिए, 27 दिन में आपको MLM चला जाए, मालूम चल जाएगा उसका फायदा। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोन? कीर्ति जी पूछ रही हैं, एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। कीर्ति जी, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोन ये है कि प्रैक्टिस का आप समझ लो कोई टूल है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं मुझे कहीं पे कुछ एग्जीक्यूशन के लिए जाना है, मुझे कहीं यहाँ से दिल्ली में जिस प्लेस पे हूँ मुझे एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाना है। तो रास्ते में मैं किसी ना किसी कन्वेंस का तो यूज करूंगी। मेरे पास अभी उड़ने का पावर नहीं है। ठीक है? तो आपको भी उस ग्रैटिट्यूड की भावना में एकदम उतर जाने के लिए हम पत्थर को एज अ टूल यूज कर रहे हैं। और उस टूल को हम अपनी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से मैजिकल बना रहे हैं। तो वो आपका पर्सनल स्टोन रहेगा। वो स्टोन आप खुद ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि घर में 4 जने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक ही स्टोन यूज कर रहे हैं, नहीं। आपकी वो पर्सनल एनर्जी का स्टोन है। तो आपको वो अलग से अपना प्राइवेट यूज करना है। एक दूसरे का कोशिश करेंगे वो नहीं यूज करना। कोशिश क्या करेंगे, यूज करना ही नहीं है। अगर घर के 4 लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो 4 अलग स्टोन होने चाहिए। ठीक है? ओके, उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? कृतज्ञता के कारण मेरे न केवल रिश्ते सुधरे गए बल्कि आर्थिक स्थिति भी। एक्सीलेंट राजेश्वर जी, वेरी गुड। मैम, स्टोन टूल कैसे यूज करना है प्लीज अगेन बताएं। ठीक है, हम वो बताएंगे। पहले हम 10 नियामतें लिखेंगे, तो सभी कॉपी पेन लेके चैट बॉक्स में रेडी हो जाइए। और हम इसको असाइनमेंट को करते हैं, हमारे पास थोड़ा सा समय है अभी। हमने आज क्लास जल्दी ओवर कर ली है। इतने बढ़िया स्टूडेंट्स हो, आपको पता है। आप सब अपने आप को क्लैप करो। टाइम से आते हो, टाइम से क्लास करते हो, लाइव असाइनमेंट भी करते हो और खुशी खुशी सो जाते हो। मैम, फिश फिश टंग का स्टोन चलेगा? ओके, चलेगा, बिल्कुल रेडी। एक का रेडी आ गया है कॉपी पेन। हम यहाँ पे 100 लोग हैं। आप कंप्यूटर पे टाइप भी कर सकते हैं, फोन में भी नोट का कॉलम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज यू आर कंफर्टेबल। माई पॉइंट इज कि होमवर्क होना चाहिए कोई भी तरीके से हो। ठीक है? तो अपनी आज की 10 ब्लेसिंग्स को सभी ढूंढेंगे। क्विकली एवरीवन, ब्लेसिंग कैसे लिखनी है कल रोंडा बर्न ने हमें समझाया था। आपको लिखना है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ। किस बात के लिए आपको महसूस होता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, उस बात को सोचना है, उस बात को लिखना है।
डिटेल में कि आपको क्यों महसूस होता है कि आप उस बात के लिए खुश नसीब हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास जो है मेरी अपनी कन्वेंस है। क्यों? क्योंकि उससे मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे जब जहां जाना है मैं जा सकती हूँ अपनी सुविधा अनुसार। इस बात के लिए मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ। क्या आप मानते हो अपने आप को किसी बात के लिए खुश नसीब? तो वो आपको ढूंढना है और वो लिखना है। पहले ये 5 मिनट लिखेंगे, फिर हम 3-4 हैंड रेज हैं उनके क्वेश्चंस या क्वेरीज जो भी हैं, वी विल आंसर दोस। मैं भी लिखती हूँ, मीनवाइल आप सब भी लिखिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हैं। 10 10 10 खुशनसीब बातें आपको ढूंढनी है अपने जीवन में। जो लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं उनको भी 10 लिखनी है, चाहे आप चैट बॉक्स में लिखो कोई बात नहीं, लेकिन ढूंढो मैं किस बात के लिए खुश नसीब हूँ, ऐसी 10 बातें आपको ढूंढनी है। अपने प्यारे प्यारे माइंड को थोड़ा और शार्प करो और ढूंढो सभी। जिसका पहले 10 हो जाएगी वो चैट बॉक्स में 10 लिखेगा, और उसी से हम सबसे पहले सुनेंगे। फर्स्ट कौन आता है देखते हैं, ठीक है? 10 लिखेगा जो, उसको 10 सुनानी पड़ेंगी, और उसकी तरफ से मेरी तरफ से एक प्राइज भी मिलेगा उसको। जल्दी से। 10 चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे जिसका सबसे पहले होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। किसी का भी नहीं आया, वेरी गुड, कीप गोइंग। 10 मेंशन कर देंगे जिसका भी सबसे पहले हो जाएगा, और पूरा होमवर्क होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं।
10। ओके, एक्सीलेंट, डॉक्टर सुनीता मेहता। ओके, आप होल्ड कीजिए, अभी लेते हैं आपसे। 1 2 3 4 5 6, मेरी भी 8 ही हुई है। ओके, चलिए सुनीता जी, मैं आपको बटन दे रही हूँ, आपने हैंड रेस किया हुआ है। हाउ टू आइडेंटिफाई यू, कीर्ति ने भी लिख लिया है। ओके, पहले हम लेकिन सुनीता जी से लेंगे। सुनीता जी, आप हैंड रेस कीजिए प्लीज, मैं आपको कैसे सर्च करूं, बिकॉज वी आर 100 हेयर। आप हैंड रेस कीजिए, जूम में करेंगे हैंड रेस तो मेरे लिए बेटर रहेगा। आप वीडियो ऑन कीजिए, नहीं तो हैंड रेस कीजिए। और ओके सुनीता जी, मैं आपको बटन दे रही हूँ। ब्लेसिंग्स लिखना है ना, बताना है ना आपको जो मैंने लिखा है। जी जी बिल्कुल, बताइए आपने कैसे लिखा है और क्या लिखा है, और 10 ब्लेसिंग होनी चाहिए। जी, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस हाउस एंड a रूफ अंडर विच आई लिव। ठीक है, या ठीक कुछ है, और फॉर्मेट ओके। है? आप ओके। इसको आप इसको और भावना क्रिएट करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो कि मैं बहुत 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 धन्यवाद महसूस करती हूँ। मतलब अगर आपने नहीं लिखा तो आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। चलिए सेकंड बताइए। I am grateful to God for giving me birth and I am alive. ओके, एक्सीलेंट। थर्ड। Thank you, God, for giving me parents who have taught me values in life. ओके, वेरी गुड। फोर्थ। I am grateful to God to give me brothers and sisters who are so loving and caring. ओके, वेरी गुड। फाइव। Thank you, God, for giving me a husband who is very caring and who takes care of me. एक्सीलेंट। सिक्स। Thank you, God, for giving me children who are very loving and who are caring. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट। Thank you, God, for making me a doctor. फॉर मेकिंग मी A doctor. डॉक्टर। ओके ओके, वेरी गुड। I am extremely thankful to God for giving me such a wonderful job I am doing. ओके, वेरी गुड। Thank you for all the riches I have received till now, my car, my house, my bungalow, etc. ओके, एक्सीलेंट। लास्ट। Thank, thank you for giving me such a healthy body that I am very active and spiritual. ओके, एक्सीलेंट। एवरीवन क्लैप फॉर सुनीता जी। उन्होंने Thank जल्दी you. से अपनी लाइफ के अंदर 10 ब्लेसिंग्स को ढूंढा है, और आई एम सो हैप्पी। मुझे नहीं पता सुनीता जी को कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन अगर हम सब ने देखा तो सुनीता जी की लाइफ में कितना अबंडेंस है। उनको भगवान ने अच्छे रिश्ते भी दिए हैं, अगर उन्होंने लिखा है उसमें भी वो कृतज्ञता महसूस कर रही हैं। भगवान ने उनको डॉक्टर बनने का मौका दिया, और डॉक्टर बनने के बाद उनको नौकरी भी लगी। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो शी इज वन ऑफ दोज लकी पीपल कि जो पब्लिकली डॉक्टर बन के जॉब में उन लोगों को सर्व भी कर रही हैं। उनको अपने जिंदा होने के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस हो रहा है। तो आई एम श्योर अगर इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में ढूंढेंगे, आपको ढूंढना है ये, क्योंकि आपको लगेगा यार मेरी लाइफ में ना नेगेटिविटी बहुत है, मेरी लाइफ में ना प्रॉब्लम ज्यादा है। नहीं, आपको अच्छी बातें ढूंढनी है, जबरदस्ती ढूंढनी है। जब आप धीरे धीरे ढूंढना शुरू करोगे तो लाइफ में आपके चेंज आने लग जाएगा। और रोंडा बर्न ने आज भी हमें समझाया कि कुछ महीनों में आपकी लाइफ चुंबक हो जाएगी, आप जादुई बन जाओगे, और आपके पास खुशियां खुद चलकर आने लगेंगी। ठीक है, वेलकम सुनीता जी। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना, और आपको एक पर्सनल 1 घंटे का मैं 1 to 1 काउंसलिंग लूंगी। इन केस आपके जो भी सवाल है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आई एम देयर टू टेल यू, और हम ये लाइव जूम पर ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सुनीता जी, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू यू, एंड होप टू सी यू। आप कम्युनिटी में हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आप मेरे से अपना टाइम ब्लॉक करवा लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, सो अभी आई एम श्योर सबने ये होमवर्क कर लिया है। किसी ने अगर नहीं किया है तो उनको सुनीता जी के समझ में आया होगा। फिर भी मैं अपना भी बता देती हूँ। मैंने क्या लिखा था, मैंने
8 ही लिखे थे। एक तो मैंने आपको बता दिया था कि मेरे पास अपनी कन्वेंस है, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। दूसरा मैंने लिखा था कि आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल फॉर माई ब्यूटीफुल हेयर्स, इसकी वजह से मेरी पर्सनालिटी कितनी अच्छी लगती है। आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कि जब भी मुझे किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है दे ऑल आर अवेलेबल। आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि मेरे 32 हेल्दी टीथ्स हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल फॉर माई हैंड्स, कि मैं अपने हैंड से ब्लेसिंग्स लिख पा रही हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल फॉर माई स्टडी टेबल एंड चेयर, जिसपे लेके मैं पूरा दिन काम करती हूँ, मैं जूम सेशंस ले रही हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल फॉर एयर, जो हवा चल रही है। और सर्दियों में दिल्ली में लोगों को लग रहा है ठंड है, लेकिन मैं उस हवा को इंजॉय कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ। और इसलिए मुझे बाकी लोगों से कम ठंड लग रही है, क्योंकि मैं उस ठंड को ब्लेसिंग दे रही हूँ। आप समझ रहे हो? अगर आप मौसम को ब्लेस करने लग जाओगे ना, तो आपको गर्मी सर्दी में भी अंतर फील नहीं होगा। आप भगवान के हर मौसम को एंजॉय करोगे। आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल फॉर ऑल माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़ों के लिए कृतज्ञ हूँ कि भगवान ने मुझे भर भर के क्लोथ्स दिए हैं, कि मैं चेंज कर करके पहन सकती हूँ। फंक्शंस के लिए दिए हैं, घर के लिए अलग दिए हैं, सोने के लिए अलग दिए हैं। तो आप देखो हम कितने ब्लेस्ड हैं। और हम क्या करते हैं, हम रोते रहते हैं। मैं भी पहले रोती रहती थी। मैंने भी इसको प्रैक्टिस करके आ, इसको चेंज किया है और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट लेके आया है। ठीक है, तो ये मेरी ब्लेसिंग्स थी। तो थैंक यू सो मच सभी का। अब 2-3 हैंड्स रेज हैं, अगर किसी के कुछ भी क्वेश्चन और शेयरिंग्स हैं, अभी भी हमारे पास टाइम है। हम इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना, आई एम सो प्राउड ऑन ऑल ऑफ यू कि हम जल्दी जल्दी सारे काम करके अपनी लाइफ को खुशियों से भर रहे हैं। ओके, सबसे पहले शीतल जी बहुत देर से वेट कर रही हैं हमारा। मैडम ये रहा पत्थर मेरे चलिए, पास। और सब अपने प्यारे प्यारे चेहरे दिखा। जी शीतल जी। मैडम नमस्ते। ये पत्थर ये ममता मेरा जी रहा, 10 हो। जादुई पत्थर। जी, ये आप कुछ मैंने पूछना चाहते हो या शेयर करना चाहते हो? ये ब्लेसिंग मैंने लिख लिया था 10। ओके, वो वेरी बोलूं? गुड। नहीं, अभी और ब्लेसिंग नहीं लेंगे। आपको कुछ एक्सपीरियंस अच्छा, शेयर करना है या क्वेश्चन पूछना है, तो हम अभी वही लेंगे बस। नहीं। नहीं, चलिए फिर आप आज इस पत्थर से प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपने 10 कंप्लीट कीजिएगा और खुशी खुशी सोना है। और अभी वेट कीजिए, अभी हम कुछ स्पेशल भी करने वाले हैं आज। चलिए, बीना जी। बीना जी कहाँ गए? बीना जी का हैंड रेस था अभी। ओके बीना जी, मैं आपको बटन दे रही हूँ। हाँ, ब्लेसिंग्स ही बतानी थी। चलिए, 2 ब्लेसिंग्स बताइए आप। ओके, थैंक यू। हाँ जी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं जिंदा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और ये ऊर्जावान, आशा से भरा हुआ, चांसेस से भरा हुआ, संभावनाओं से भरा हुआ, आशीर्वाद से भरा हुआ इस दिन के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। दूसरा, मैं अपने माता पिता के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, खुशनसीब हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया और इस योग्य बनाया कि मैं संसार में जी पा रही हूँ। एक्सीलेंट, वेरी गुड बीना जी, एक्सीलेंट। अगर अब आप देखेंगे तो कभी कभार हम जाने अनजाने में क्या कर देते हैं, कि हम ये सब बातों को भूल जाते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना। हो सकता है कि अभी हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे ना हो, लेकिन कुछ भी हो, उन्होंने हमें पढ़ाया तो सही, उसको बात को तो हम इनकार नहीं कर सकते ना। तो आप एटलीस्ट उन बातों के लिए ही ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। शीतल जी, मैं आपको बटन दे रही हूँ, आप एक ब्लेसिंग सुना दीजिए, वरना मुझे लगेगा कि मेरी स्टूडेंट बिना कुछ कहे चली गई। शीतल जी, आर यू देयर? शीतल डागा जी। हाँ जी, चलिए एक ब्लेसिंग सुनाइए आप, मैंने बटन दिया है आपको। मैं नीतू के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि उसने, वो मेरी अच्छी सहेली है, उसने मेरे को आपका ये सेक्शन का लिंक भेजा। ओके, थैंक यू नीतू जी, का थैंक भी यू। थैंक यू, और आपका भी बहुत बहुत प्यार भरा थैंक यू। ओके, राजेश्वर मिश्रा जी, आप कुछ कह।
कहना चाहते हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लेसिंग तो मैंने 10 लिख लिया, वो सब चैटिंग में है, आप पढ़ सकती हैं उसको। लेकिन एक अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि 91 मेंबर्स इस आपके ग्रुप में जुड़े हैं और मैक्सिमम अबव 60 है। तो आप, ऐसा लग रहा है कि हमारे टीचर बहुत यंग है और स्टूडेंट जो है अबव 60 ईयर्स है ना। प्रौढ़ शिक्षा क्लास चल रही है, लेकिन इतनी अच्छी चल रही है कि एक युवा टीचर एक अंतिम पड़ाव की ओर, जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर जो चल रहे हैं, उनके लिए एक जीवन का मार्ग दिखा रही है। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी नहीं मच, नहीं, थैंक यू। आप, मेरी हमारी क्लास में कोई अंतिम पड़ाव पे नहीं है। आपकी जिंदगी, नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, तो आपको जी जस्ट जी। इंजॉय करना है और ग्रेटिट्यूड में रहना है। ठीक है? या बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच राजेश्वर जी। और आप भी ऐसा मत सोचिएगा, कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। वहां से, जहां से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, बस वहीं से नई जिंदगी की या शुरुआत हो रही है। चलिए शोभा जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। मैं भी ब्लेसिंग का लिखी हूँ, हाँ पर जी। मुझे मुझे पता नहीं था। मैं कॉपी उपी कलम उलम कुछ लेके नहीं आई, तो थोड़ा लेट हो गया। और शुरू से हमको क्या लिखना है, नहीं लिखना, थोड़ा समझा दीजिए। और ब्लेसिंग का तो मैं ये लिखी हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ कि भगवान मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, इतने अच्छे घर दिए, इतना अच्छा पति दिए। मेरी एक बेटी सीए है, मेरी एक बेटी फैशन डिजाइन ऑल इंडिया में टॉप नोएडा में जॉब कर रही है, अभी जर्मनी गई हुई है। एक बेटी मेरे पास है जो मेरी दिन रात इतनी सेवा करती है, मेरा इतना कहना मानती है। मेरे पति इतने अच्छे हैं। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। मैं कल की एक भगवान की ब्लेसिंग बताती हूँ। मैं कल ही डॉक्टर को दिखा के मुजफ्फरपुर से रात को 9 बजे इसी समय आई। और वहाँ गरीबनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, तो मैं रोज शंकर भगवान की पूजा करने जाती थी। मेरी गले की सोने की चेन टूट के गिर गई। और कल, और मैं जब घर आई तो कार्डिगन खोली तो देखती हूँ चेन लटकी पड़ी है। ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा, टूटी हुई चेन लटकी पड़ी है। मैं भगवान को बहुत धन्यवाद दी। और मैं सब, भगवान मेरे पर बहुत सहायक है। मैं सब तीरथ व्रत सब इतनी छोटी उम्र में बच्चे लोग को लेके कर ली हूँ। और मैं ऐसे बहुत मेरे बॉडी इश्यूज है, पर भगवान की कृपा से मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और भगवान मेरे घड़ी घड़ी में मेरी रक्षा करते हैं। मैं जो मन में होता, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती हूँ, मैं केदारनाथ बद्रीनाथ सब चल गई हूँ। और जहां भी भगवान दिक्कत होती है, भगवान को बोलती, भगवान तुम जानो, और तुरंत मेरा काम वो पूरा हो जाता 10 मिनट के अंदर। भगवान मेरे इतने दुख होता है, टेंशन मुझे बहुत होता है, पर मेरा काम कहीं नहीं रुकता है। मैं भगवान को रात दिन शुक्रिया करती हूँ। और बस मैं क्लास सब इतना करती हूँ, मेरे थोड़ा समझ में जल्दी नहीं आता, मैं इंग्लिश भी नहीं जानती हूँ, और लिखना उखना चेक पर नहीं जानती हूँ। तो कोई मेरे बात, कोई शुरू बात नहीं से शोभा जी। आपको जितना भी जानकारी है, उतनी अपनी जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत है। और आपको जितना समझ में आ रहा है, आप फिलहाल छोटा छोटा ही सही रोजाना प्रैक्टिस करो। कोशिश करो क्लास में आओ, नहीं आ सकते तो बाद में रिकॉर्डिंग को सुनो। और अभी हम आगे आने वाला सेहत का एक चैप्टर करेंगे, तो उससे आपको उसमें भी जादू फील होगा। ठीक है? देखिए, देखिए मैजिक, मैजिक स्टोन। और मैं तो आपकी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपकी माँ ही ने मुझे इसमें जोड़ा है, आपकी माँ। तो और मैं तो फ्रेंड जैसी हूँ, बहुत क्लासेस किए हैं हम लोग साथ में। जी, ठीक है। और थैंक यू। हमें शुरू से क्या करना दीदी बता दीजिए। शोभा जी, आपको मैंने लिंक भेजा था ना मैसेज में, आप वो पहले यूट्यूब का एक बार लिंक देखिए और फिर हम आपको दोबारा से समझा देंगे। अभी जितना आपने किया है उतने के लिए आज बहुत है। ठीक है? लिखना नहीं है शुरुआत, कुछ हमको, लिखना नहीं अभी है। मत देख, शुरुआत के लिए आपने पहला कदम उठाया है ना, कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे कदम आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है? हमको सीखने सीखने का बहुत इच्छा है। हमें सबको अपना भगवान, सब में हमको भगवान दिखते हैं, सबको हमको इतना अच्छा लगता है इसमें। जी जी जी, थैंक यू शोभा जी। अरे ये किसी ने मैसेज किया है, आज हम बिल्कुल भूल ही गए कि हमने रिकॉर्डिंग का बटन ऑन ही नहीं किया। रिया जी, ओके, पूरी क्लास ओवर हो चुकी है। आज तो ये रिकॉर्डिंग मिस हो गई। चलो, मैं कोशिश करूंगी कि मैं फेसबुक से लेके और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। वैसे एक गुड न्यूज है कि कल से हम यूट्यूब पे ही लाइव रहेंगे डायरेक्टली। और वो सॉर्ट हो गया है हमारा टेक्निकल इशू, तो आई एम श्योर कल से ये चैलेंज नहीं आएगा।
दीप्ति जी मैं आपको बटन दे रही हूँ लास्ट। ओके। हेलो, हाँ एक बारी मैडम स्टोन का बता दोगे उसको कि कैसे यूज करना है दोबारा से। जी, स्टोन में आपको क्या करना है, आपको स्टोन कोई भी ढूंढना है जो कि छोटा हो और नुकीला ना हो। वो स्टोन को आपने अपने हैंड में रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, स्टोन लेना है आपने, ये स्टोन को आपको अपने हाथ में रखना है। ये बहुत बड़ा है, आपको छोटा लेना है, ये स्टोन है नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो आपको उसको रखना है हाथ में, और आपको आंखें बंद करके पूरा दिन में आज जो भी सबसे अच्छी बात हुई उसको याद करना है, उसके लिए खुश होना है, और उसके लिए भगवान को धन्यवाद करना है कि भगवान आज आपने मेरे जिंदगी में इतनी अच्छी खुशनसीबी लेके आए। तो मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी खुशी में फिर आपको स्टोन को अपने सरहाने के पिल्लो के साइड में रखना है और सो जाना है। इतना ही करना है बस। और मैं अपनी दो ब्लेसिंग शेयर कर सकती हूँ? एक कर सकते हो प्लीज। एक, ओके। ओके। I am blessed that I am able to attend these sessions timely and seriously. Thank you, thank you, thank you. वेरी गुड। तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में क्या आएगा, पंचुअलिटी आएगी। इससे आपकी लाइफ में आएगा कि आप इंटेग्रिटी से हर काम करते हो, जो भी आप कमिटमेंट करते हो उसको पूरा करते हो। जब आप यूनिवर्स को कुछ ही चीज के लिए ब्लेसिंग फील करते हो ना, आपको पता ही नहीं होता, आप अनजाने में बहुत कुछ अपनी जिंदगी में लेके आते हो। वो चीजें आपको लाइफ में और तरक्की के रास्ते पे और खुशियों के रास्ते पे लेके जाती है। ठीक है, थैंक यू दीप्ति जी। सुचिता जी। हेलो हाँ जी, नमस्ते। मैम, मेरे पास ये स्टोन है, जी। ये वाला। तो ये चलेगा ना मैम? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। वो हाथ में रखने के लिए भी काफी अच्छा है। और मुझे एक बात बतानी है, जब से मैं ग्रेटिट्यूड में आई हूँ ना मैम, तो मेरे थॉट जो है ना नेगेटिव चले गए हैं। मेरे पास सारी पॉजिटिविटी आ गई है। ऑफिस में भी मेरा काम भी बहुत अच्छा होता है, मतलब कब मेरा काम होता है पता नहीं, एकदम स्मूथली हो जाता है मैम। पहले टेंशन से रहती थी मैं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम अच्छा हो गया है मेरा। ओके, एक्सीलेंट, एवरीवन क्लैप फॉर सुचिता जी कि वो कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर और आप मैम, नेगेटिव। हाँ जी। और मैं है ना मॉर्निंग को उठती हूँ ना, तो सुबह में 10 लिखने को जाती हूँ, मगर 10 लिखते लिखते मेरा कभी 20 होता है, मुझे पता नहीं चलता है। और लिखते लिखते ऐसे नहीं कि लिखा और रख दिया, लिखते लिखते मैं वो फीलिंग्स में चली जाती हूँ। मतलब वो फील करती हूँ, वो जब रहती ना, जैसे मैं लिखती हूँ कि मेरा परिवार है, तो मैं परिवार को आंखों के सामने देख के एकदम बॉडी को फील करती हूँ, जैसे बोलते रोम रोम उठ जाता है, वैसे हाँ जी। करती हूँ। मतलब मुझको, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है करने से। ओके, एक्सीलेंट, आप इसी और तरीके से एक टॉपिक अगर ले लिया ना एक घर का, तो एक घर के पीछे एक वर्डिंग नहीं होती है, उसके पीछे पूरा एक बुक मतलब पेज लिखा जाता है। समझ में नहीं आता मैं कैसे लिखती हूँ ये सब। नहीं, वो क्या होता है कि जब आप दिल से महसूस करने शुरू कर देते हो ना, दिल से हाँ निकलने लगता है, तो फिर आप 10 क्या 20 क्या 50 भी लिखने लग जाते हो। हाँ। तो मिनिमम, मतलब आपको कम से कम कोशिश करनी है कि 10 लिखनी है, और अगर ज्यादा लिख पाते हो तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं। ठीक है। और ऑफिस में भी मेरे बॉस के साथ थोड़ा अनबन रहती थी, लेकिन अभी पता नहीं 2-3 दिन से अच्छा है, तो मैं मेरे से बहुत अच्छे से बात करती हूँ। मतलब कुछ लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, हुआ है किस तरफ से। सब वो चेंजेस आ गए, उनमें चेंजेस आ गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच, सच अ वंडरफुल शेयरिंग। उन्होंने, आपने सुना उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि उनके जो नेगेटिव थॉट्स थे वो पॉजिटिव हो गए, और पिछले 2-3 दिनों में जाने अनजाने वो बाकी लोगों से भी अच्छे से बात करने लगी हैं। ऑफिस में भी उनका एनवायरनमेंट और बेहतर और सुंदर हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच सुचिता जी, थैंक यू सो मच। मुक्ति जी, आपको बटन दे रहे हैं हम। हाँ, क्योंकि मैंने अपने पैसे में लिखा हुआ है कि मुक्ति जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। एक मिनट। अभी आप आ रही आई है क्या थिंक आपको आवाज? थोड़ी सी बेटर है। हाँ जी, बताइए। तो मैंने ब्लेसिंग्स में लिखा था कि मैं अपनी अपनी मतलब डॉटर के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि ना वो जाने अनजाने में मुझे ना जो मैजिकल फोर्थ स्टेप है ना वो मुझे करवा देती है। वो डेली मुझे कहती है, मम्मी आज चलना नहीं आपने?
मम्मी आपने आज चलना नहीं है। तो वो ओके। कुछ किसी बहाने से शॉप पे जाती है, बट मेरे मैजिकल फोटो स्टेप हो जाते हैं। तो जी। मुझे मतलब वो रिमाइंड कराती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात। ओके, वेरी गुड, हाँ। एक्सीलेंट। तो यहाँ पे मुक्ति जी शेयर कर रही हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स भी उनको ग्रैटिट्यूड में हेल्प कर रहे हैं और उनकी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपके लाइफ में भी होगा कि जाने अनजाने आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके फैमिली मेंबर्स भी इसी जर्नी में आ जाएंगे और आप सब डेली बेसिस पे खुश रहेंगे और मस्ती करेंगे। थोड़े से चैट बॉक्स में मैं पढ़ लेती हूँ। ओके, थैंक यू सुनील जी। जूम रखिए मैम। हाँ जी, जूम पे तो रहेगा ही दीपाली जी, लेकिन हम यूट्यूब पे भी साइमल्टेनियसली लाइव रहेंगे। ओके, जूम रहेगा, जूम रहेगा। आज का रिकॉर्ड नहीं हुआ रिया जी, आई एम वेरी सॉरी। बिल्कुल मिस हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं खो जाती हूँ बिल्कुल क्लास में, मेरे दिमाग में ही नहीं रहा। मैं लिख लूंगी यहाँ पे अब, अच्छे से लिखा हुआ है, मैं फिर भी भूल गई। ओके, यहाँ पे किसी ने हमें शेयर किया है, वेरी गुड, मुक्ति जी ने। ओके, हमने ऑलरेडी मुक्ति जी का शेयरिंग ले लिया। मुस्कान जी, आई एम श्योर अभी आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि स्टोन को, पत्थर को हमें कैसे यूज करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, यहाँ पे किसी और ने शेयर किया है, सुचिता जी ने, उनका शेयरिंग भी हमने ले लिया है। और राजेश्वर जी का भी शेयरिंग हमने ले लिया है। ओके, थैंक यू। यहाँ पे एक और है, कीर्ति सिंह जी का, उन्होंने लिखा है, आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव माई ओन पर्सनल कार, आई कैन ट्रैवल एनी टाइम एनीवेयर, आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव स्मार्ट टीवी एंड आई कैन प्ले सूदिंग भजन आरती व्हेन आई डू वर्शिप, एक्सीलेंट। I am blessed that I have so many plants around me and I feel great even I see them. So thank you for my friend who is like, okay, thank you for her brother who is like a friend, जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सकती हैं। तो उन्होंने अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स लिखी हैं। मुझे खुशी है कि सब लोग अपनी ब्लेसिंग्स और होमवर्क लिख रहे हैं। एंड थैंक यू गॉड। जस्ट प्लीज मैं एक बार देख लूं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, किसी का कोई इंपॉर्टेंट आंसर ना रह जाए। थर्ड कदम दोहराइएगा। ओके सुगंधा जी, हम उस पे आ रहे हैं अभी। ओके, ठीक है, 6 नए मैसेजेस आए हैं। प्लीज अनम्यूट मी, समथिंग वांट टू आस्क। दीप्ति जी, आपको तो हमने कर दिया, आपको फिर से कुछ पूछना है। मैम एक दिन हेल्थ पर लीजिए। हाँ जी दीपाली जी, अभी आगे वाले चैप्टर्स में हम करेंगे। और निर्मला जी का थैंक यू। राजेश्वर जी, मैं आपको बटन दे रही हूँ, ये लास्ट लेंगे और उसके बाद हम फिर मेडिटेशन करेंगे। थैंक यू मैम। मैं एक बात बताना भूल गया। मेरे ऑफिस में एक लड़का था। वो थोड़ा काम में कमजोर है, प्रतिदिन मेरी डांट खाता था। वो बहुत रोज रोज कोई ना कोई गलती से डांट, लेकिन जब से मैं ग्रेटिट्यूड में आया मैंने उसको डांटना बंद कर दिया। ओ, वो लड़का सो इतना खुश एक्सीलेंट। हो गया, इतना खुश हो गया। परसों के दिन मेरे पास आया, बोले सर पिछले कम से कम 1 महीना हो गया, बोले आपने मुझे डांटे ही नहीं किसी काम के लिए। उसके काम में 80% सुधार आ गया मैम। ये है ग्रेटिट्यूड का असर। थैंक यू थैंक यू। राजेश्वर जी। बहुत ही सुंदर शेयरिंग करी आपने कि जब हम कृतज्ञता महसूस करने लगते हैं और जब हम ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली झिंगालाला होने लगता है, मैजिकल हो जाता है, जादू ही जादू बिखरने लग जाता है। ठीक है, ओके। तो चलिए एवरीवन, अब हम यहाँ पे करते हैं। हमें आज ऑलमोस्ट 6 डेज हो गए हैं और 11 जनवरी है आज। तो फर्स्ट से लेके 11 जनवरी में किस किस का बर्थडे आया था, या आज किसी का अगर बर्थडे है तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे, मी लिख देंगे, मी कर देंगे। या तो किसी का अगर आज है तो वो आज का बता देंगे, और जिसका 1 से 10 के बीच में था वो भी बता देंगे। जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में। पद्मजा जी, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डॉटर, कल मेरी बेटी का था। निर्मला जी, 2 जनवरी। उदय जी, वेरी गुड। सबकी लाइफ मैजिकल, मैजिकल बर्थडेज हैं ये साल के, नए साल में। और कौन है, 3 4 5 रिप्लाई आए हैं। और कोई किसी का बर्थडे था 1 जनवरी? दीपाली जी, एनीवन एल्स? ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारी 17 अभी आने वाला है मैरिज एनिवर्सरी।
कब की है मैरिज एनिवर्सरी? प्लीज अनम्यूट में, ये हमें दीप्ति जी बहुत रिक्वेस्ट कर रही हैं। चलिए लास्ट लेते हैं हम ये। हाँ जी दीप्ति जी बताइए। मैडम आज ना स्टोन का मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यही था अर्जेंट जो कोई बात नहीं, शेयर आप करना कल था। से कर लीजिए। आप सिर्फ रात को सोते समय आंखें बंद कीजिए और अपनी ग्रैटिट्यूड की किताब जिसमें आपने लिखा है उसको हाथ में लीजिए, उसको अपने दिल से लगाइए और पूरा दिन में कुछ भी अच्छा हुआ है उसको याद कीजिए और सो जाइए। ठीक और है? सेम प्रोसेस मॉर्निंग में भी करना है ना स्टोन के साथ, जब उठो तब? हाँ, उठो तो आप उठने के लिए थैंक यू करके और पूरे दिन की अपनी शुरुआत कर लीजिए। ओके, थैंक थैंक यू सो मच। ओके, तो हमारी तरफ से सभी को विश यू मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे। आप सभी का ये साल बहुत प्यारा Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. सभी को जन्मदिन बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका हर दिन जन्मदिन जैसा ही मजेदार हो। हर दिन आप उसी खुशी में और उसी मौजों में रहो कि आज मेरा जन्मदिन है। ठीक है? चलिए अभी हम मेडिटेशन करते हैं, कम से कम हम मेडिटेशन को तो रिकॉर्ड कर ले। चलिए, एवरीवन क्लोज योर आईज, बैक स्ट्रेट, आंखें बंद सभी की। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। डीप इनहेल and exhale. Once again, deep inhale and exhale. आंखें बंद और अपने आज के दिन को सुबह से लेके अभी तक जैसा भी आपका दिन गया, आपने सुबह उठने के बाद क्या किया, कहाँ गए, किससे मिले, कब आपने खाना खाया, सेशन में लॉग इन किया, मन में पूरे दिन को रिवाइंड करेंगे। पूरे दिन को रिवाइंड करेंगे मन में। और शुक्रिया करेंगे परमात्मा का कि आज का दिन कैसा भी गया हो, अच्छा, बुरा, भाग दौड़ वाला, मे भी हो सकता है किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर भी परमात्मा का शुक्रिया करेंगे, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हे अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु, मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, मैं उन सबको स्वीकार करती हूँ खुशी खुशी। मैं जैसी भी हूँ, मैं अपनी लाइफ को स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। मैं अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ।
I accept my past, my present, and my future with bottom of my heart. मैं परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ कि मैं जहां भी हूँ मैं ठीक हूँ. I thank you, God, that wherever I am, the way I am, I accept my life and I put gratitude for my life. मेरी जिंदगी में आज जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को मैं स्वीकार करती हूँ और उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ. I bow my head and pay gratitude for whatever I have in my life at this present situation. मैं अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपनी नौकरी को, अपने भाई बहन को, अपने रिश्तेदारों को, हमारे जितने भी सर्विस करने वाले लोग हैं उनको, हमारे घर में जो मेड आती है, ड्राइवर आता है, मेरे पड़ोसियों को, नेबर्स को, मैं हर किसी को स्वीकार करती हूँ जिनको भी आपने मुझे दिया है. आपने मुझे लाइफ में जो कुछ भी दिया है, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग विद बॉटम ऑफ माई हार्ट. आई एम थैंकफुल गॉड फॉर एवरीथिंग that you have provided me in my life. I thank you, thank you, thank you God. I thank you infinite times. मैं आपको अनगिनत बार धन्यवाद देती हूँ हर उस चीज के लिए जिससे आपने मुझे नवाजा है. I thank you God for everything. I thank you, thank you, thank you. Unlimited times thank you. मेरे रोम रोम से थैंक यू. मेरी हर सांस का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, बार बार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया प्रभु. बार बार शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया. मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपसे कि जो भी मैं ये प्रैक्टिसेस सीख रही हूँ मैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करूँ, इम्प्लीमेंट करूँ और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशिश करती रहूं. जब तक जीवित हूं तब तक कोशिश करती रहूं. आई थैंक यू गॉड. आई थैंक यू यूनिवर्स. आई थैंक यू अल्लाह. आई थैंक यू वाहे गुरु. आई थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अनलिमिटेड टाइम्स थैंक यू. दिल से थैंक यू. मेरे हर रोम रोम से थैंक यू. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया. बहुत 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 शुक्रिया. दिल से शुक्रिया. आज के समय के लिए शुक्रिया. इन सांसों के लिए शुक्रिया. इस समय मैं आपको याद कर पा रही हूँ उसके लिए शुक्रिया. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्रभु जी. बहुत 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 शुक्रिया. आंखें बंद ही रखेंगे. अपने हैंड्स को अच्छे से रब करके हीट जनरेट करेंगे. प्लेस इट ऑन योर आईज एंड खुद को आशीर्वाद देंगे कि गीतिका मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू खूब खुश रह, हमेशा स्वस्थ रह. अपना नाम लेंगे आप सभी. तो खूब खुश रह, हमेशा स्वस्थ रह, तेरे परिवार में एकता बनी रहे, सुख समृद्धि आए, हमेशा प्रॉस्पेरिटी बनी रहे. तू जहां जाए वहां पे खुशियां फैलाए, हमेशा खुश रहे. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया. तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु. स्लोली ओपन योर आईज एंड थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. आज हम थोड़ा सा डीले हो गए हैं. कल सभी हम मिलेंगे और आप अपनी 10 नियामतें ढूंढेंगे
और स्टोन अगर जिसके पास नहीं है वो स्टोन ले लेंगे और उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।